Hello, welcome back. Today, in this video, we are going to cover up a very interesting topic of your chapter, that is rural-urban composition. Previously, हम लोगों ने sex ratio and age structure देखा कि सेक्स रेशियो एंड एज स्ट्रक्चर कैसे इंडिकेट करता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ये स्टेटस दिखाता है. सिमिलरली चलिए शुरुआत करते हैं इसी तरह एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को जिसका नाम है रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यू शुड कीप इन माइंड दैट किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट और रेसिडेंस बोलते हैं. सो जनरली पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस इनटू रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन. अब सारे कंट्रीज़ के अपने अपने क्राइटेरिया है एक रूरल एरिया को डिफाइन करने के लिए एंड एक अर्बन एरिया को डिफाइन करने के लिए. इन जनरल जैसे कि आप देख सकते हैं, रूरल एरियाज आर दोज वेयर पीपल आर इंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़, whereas urban areas are those where majority of the working population is engaged in non-primary activities. कहने का मतलब इन सिंपल टर्म्स रूरल एरियाज वो होते हैं जहाँ पे लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं. प्राइमरी एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग एट्सेट्रा. वेराज अर्बन एरियाज वो होते हैं जहाँ के लोग नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड होते हैं, जैसे कि टर्शरी, सेकेंडरी, क्वाटनरी एंड क्वीनरी सेक्टर्स. दूसरा पॉइंट ये है कि हम देखते हैं रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं. वो डिफरेंस हो सकते हैं या एज, सेक्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का, या तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एट्सेट्रा. So there is a marked contrast between your rural and urban areas in terms of this following criteria. So उसी एक डिफरेंस को हम लोग आज देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं रूरल अर्बन सेक्स कॉम्पोजिशन. लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्लाइड डेटा बता दूं कि आज के टाइम में कितने लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं एंड कितने लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं. सो जनरली हम लोग कंपेयर करेंगे बिटवीन योर डेवलप्ड एंड योर डेवलपिंग रीजन्स. So I have a slide for you all where I have just quoted a multiple bar diagram. इस diagram के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि currently 2020 में urban population कितना है developed and less developed regions में. So as you are able to see it up on the screen, the dark blue color indicates the world urban population, the red color indicates the region with more developed conditions and the green color indicates the less developed regions. So comparatively अगर हम लोग compare करें 1950 and 2020 data को, so आपको दिखेगा कि in 1950 the blue color indicator shows that throughout the world less than 25% people were living in the urban areas. Whereas let us move on to 2020 data, you will find that more than today 50% people live in the urban areas, isn't it? अब देखते हैं कि developed and less developed regions का condition क्या है. अब देखिए on your 1950 data में the red color is indicating more developed regions. So 1950 में 50% लोग urban areas में रहते थे, लेकिन in 2020 more than 75% live in the urban areas in your developed regions. Now what about the less developed regions? So just focusing on the 2020 data says that even less than 50% people are living in the urban areas, means comparatively more people are living in the urban areas in developed regions than the developing regions. Now developing countries के हालत क्या है अगर मैं आप लोगों को बताऊं, developing countries में today more than 75% people are still living in the rural areas, जैसे कि इंडिया, चाइना एट्सेट्रा. ये क्यों है? क्योंकि हमारा means of economic activity still agriculture पे dependent है. लेकिन आप लोग एक और चीज़ ध्यान में रखिए, because of the fast pace of development right now urban population or urban areas are expanding. Okay, it's multiplying, although when we compare it the rural population is more, but however the urban population or the urban areas is multiplying because of the rate of pace of development and also because of migration from the rural to urban areas. Okay, now let us see
वन ऑफ द डिफरेंस दैट इज़ फाउंड इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज, जिसको हम लोग बोलते हैं रूरल अर्बन सेक्स कॉम्पोजिशन। इसका मतलब रूरल एंड अर्बन एरियाज में सेक्स डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ऑफ कोर्स तुम देखोगे कि रूरल एरियाज में डिफरेंट सेक्स रेशियो है, अर्बन एरियाज में डिफरेंट सेक्स रेशियो। नाउ विद दिस स्लाइड हम लोग क्या देखेंगे, इस देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन योर एशियन कंट्रीज़ एंड योर वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज़। अगेन हम लोग कंपेयर करेंगे सेक्स रेशियो जो कि पाया जाता है रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में। एज आप लोग को दिख रहा होगा इंडेक्स के थ्रू रूरल एंड अर्बन एरियाज़ का डिमार्केशन। अब कंपेयर करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल फिनलैंड कनाडा के सेक्स रेशियो को नेपाल के सेक्स रेशियो से। तो अगर आप लोग ध्यान से देखिए स्लाइड को, आप लोगों को दिखेगा कि जो कि सेक्स रेशियो है अर्बन एरियाज़ में, है ना, अर्बन एरियाज़ में सेक्स रेशियो ज़्यादा है, ओके, कंपैरेटिवली। फिनलैंड का सेक्स रेशियो देख लीजिए, सेक्स रेशियो इज़ मोर in the urban areas, okay. Comparatively, on the other hand, the sex ratio that are found in the African and Asian countries like Zimbabwe and Nepal is completely different in the rural and urban areas. All right, okay. Now why is there a difference between the rural urban sex composition? ये difference क्यों है, ठीक है, ये difference क्यों है? चलिए अब वेस्टर्न कंट्रीज़ का हाल देखते हैं। Now in Western European countries, okay, in your Western European countries, males outnumber females in rural areas and females outnumber male in the urban areas. मतलब देखिए अब क्या होता है, अर्बन एंड रूरल एरियाज में सेक्स रेशियो देखते हैं, ठीक है, सेक्स कॉम्पोजिशन देखते हैं। ऐसा हालात है कि इन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज फीमेल्स आउटनंबर, okay, so sorry, in Western European countries males outnumber females in rural areas. इस कहने का मतलब रूरल एरियाज में मेल्स ज़्यादा होते हैं फीमेल से एंड फीमेल्स ज़्यादा होते हैं मेल से अर्बन एरियाज में, ठीक है। अब अर्बन एरियाज में ज़्यादा फीमेल्स क्यों है? क्योंकि in most of the urban areas of USA, Canada and Europe, females they leave the rural areas, मतलब females क्या करते हैं, रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ फास्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। और एक और चीज़ है कि वहाँ की सोसाइटी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, एजुकेशन लिटरेसी रेट हाई है, अवेयरनेस हाई है, इसीलिए फीमेल्स माइग्रेट मोर इन नंबर्स टू द अर्बन एरियाज। एंड वेराज अब आप लोग सोच रहे होंगे तो रूरल एरियाज में कौन ज़्यादा है? सो इन रूरल एरियाज इन द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज मेल्स आर मोर इन नंबर बिकॉज वहाँ पे जो मीन्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो फार्मिंग है वो हाईली मैकेनाइज्ड है इन कंपैरिजन टू एशियन कंट्रीज जहाँ पे स्टिल एग्रीकल्चर क्या है, लेबर इंटेंसिव है। वेराज फार्मिंग मैकेनाइज्ड होने के वजह से रूरल एरियाज में मेल डोमिनेटेड है, मतलब मेल्स ज़्यादा रहते हैं। इजंट इट इंटरेस्टिंग? बट इन कॉन्ट्रारी जब हम एशियन कंट्रीज़ को देखें यहाँ पे सेक्स रेशियो मेल डोमिनेटेड होता है, मतलब मेल्स ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि मेल्स ही है जो माइग्रेशन करते हैं रूरल टू अर्बन एरियाज। एग्जाम्पल लाइक कंट्रीज ऑफ नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया एट्सेट्रा। अब इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। रूरल एरियाज में ज़्यादा फीमेल पाए जाते हैं क्योंकि मेल्स माइग्रेट करते हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ वास्ट job opportunities, whereas females remain back in the rural areas and they participate in farming activities, वो farming में help करते हैं। Besides, इंडिया में ज़्यादा फीमेल्स माइग्रेट क्यों नहीं करते हैं रूरल टू अर्बन एरियाज़ में? क्योंकि अर्बन एरियाज़ में देखा जाता है कि शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग है, या तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है और फीमेल्स के लिए सिक्योरिटी भी लो है सिटीज़ में, जिसकी वजह से it discourages the women to migrate from rural to urban areas. So what I'm trying to say is that in Western European countries and in Asian countries जब हम compare कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि urban areas में females ज़्यादा है in Western European countries and in Asian countries में urban areas में males ज़्यादा है. Okay, reasons already stated. So this was all about your rural urban sex composition and why is it different in your Western countries and your Asian countries. Now we'll move on to the next topic that is known as literacy. Now in general when the term literacy strikes your mind we mean people who are educated. ठीक है, सो अगेन यहाँ पे लिटरेसी रेट के बेसिस पे भी पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है। ना ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी, या पहले अगर हम लिटरेसी रेट को डिफाइन करें तो लिटरेसी
इज वंस एबिलिटी टू रीड एंड राइट। मीन्स लिटरेसी का मतलब वो होता है अगर आपको पढ़ना लिखना आए तो हम उस पॉपुलेशन को लिटरेट पॉपुलेशन भी कहते हैं। नाउ इन इंडिया लिटरेसी रेट को कैसे डिफाइन किया जाता है? In India, literacy rate denotes the percentage of population above 7 years of age who is able to read and write and have the ability to do arithmetic calculations with understanding. इसका कहने का मतलब है लिटरेसी रेट का मतलब होता है द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अबव 7 years, मतलब जो 7 साल से ऊपर है और जिसको पढ़ना लिखना और अरिथमेटिक कैलकुलेशन करना आता है विद अंडरस्टैंडिंग, उसको हम लोग लिटरेट मानते हैं। ठीक है, अब लिटरेसी रेट से हम लोग क्या समझ सकते हैं? किसी भी कंट्री के लिटरेसी रेट से हम लोग देख पाएंगे कि वहाँ का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो लिटरेट पॉपुलेशन ऑल्सो इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, okay, for the people across to understand what kind of socio-economic development is taking place in that particular country. So let us see how is the literate population an indicator of socio-economic development. ठीक है, अब लिटरेसी जो चीज़ है वो बहुत कुछ दिखाता है. It denotes a number of factors. Okay, so let us start with that. Now you will see that जिस एरिया में, ठीक है, लिटरेसी रेट बहुत चीज़ों से अफेक्ट होता है. सो जिस एरिया में गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रहे एजुकेशन के लिए, ठीक है, जिस एरिया में एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, जिस एरिया में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए, इस्टेब्लिशिंग स्कूल्स कॉलेजेस, फंडिंग कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, जनरली लिटरेसी रेट हाई हो जाता है. ओके, नाउ लिटरेसी रेट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स. ठीक है, लिटरेसी रेट अफेक्ट होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल्स के वजह से भी, ओके, एंड ऑल्सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कहने का मतलब है इन कंट्रीज़ वेयर देयर इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहाँ जिस कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, ऑफ कोर्स इन टर्न क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा, एंड देयर बाय क्या होगा, गवर्नमेंट विल ऑल्सो स्पेंड मनी ऑन द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, एंड देयर बाय क्या होगा, वहाँ का लिटरेसी रेट हाई हो जाएगा. ऑलराइट, so this is how it is related to the socio-economic. Next, also you should remember, in countries where the status, social status of female is good, ठीक है, जहाँ पे फीमेल स्टेटस अच्छा है वहाँ पे लिटरेसी रेट इज़ ऑल्सो हाई. बट ऑन द अदर हैंड इन दोज कंट्रीज़ वेयर द स्टेटस ऑफ फीमेल इज़ नॉट गुड, जहाँ पे फीमेल का स्टेटस अच्छा नहीं है, वहाँ पे दिखेगा दैट लिटरेसी रेट इज़ ऑल्सो वेरी लो. ओके, सो दिस इज़ हाउ ऑल द फैक्टर्स आर इंटररिलेटेड. ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. नाउ ऑन द सेम हैंड, जिस कंट्री में लिटरेसी रेट हाई है वहाँ पे देखा जाता है कि रेट ऑफ मॉडर्नाइजेशन भी हाई होता है, अर्बनाइजेशन भी हाई होता है, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हाई हो जाता है. क्यों? क्योंकि अ पर्सन हु इज़ लिटरेट, जो पर्सन लिटरेट होता है, ही गेन्स द एबिलिटी, ठीक है, ही गेन्स द एबिलिटी टू मेक डिसीजन, एंड ही ऑल्सो गेन्स द एबिलिटी टू मेक प्रॉपर जजमेंट्स इन हिज लाइफ. ठीक है, इस तरह से क्या होगा, अगर वो लिटरेट, वो किसी उस एरिया का पॉपुलेशन लिटरेट हो जाएगा तो उसकी सोचनी, रैशनलाइजेशन पावर इंप्रूव हो जाता है, वो बेटर डिसीजंस ले पाता है, बेटर जजमेंट ले पाता है. इन टर्न क्या होता है, उस एरिया में वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ जाएगा. ठीक है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की टेक्निक्स आ जाएंगे. लिटरेट पॉपुलेशन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटी, और जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है वो एजुकेशन लिटरेसी के वजह से अपलिफ्ट हो जाएंगे. Okay, so this is how your literacy rate will affect the socio-economic development, or it is also a very good indicator of the socio-economic development of any nation. All right, so this is all about your literacy. Now finally we move on to the occupational structure of any country. Now occupational structure का मतलब क्या होता है, अगर मैं उसको सिंपली डिफाइन करूँ, occupational structure का मतलब होता है जो population engaged है in different forms of economic activity. ठीक है, उसी को हम लोग occupational structure भी बोलते हैं. Now occupational structure और इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो हमारे
इन जनरल टर्म्स में पॉपुलेशन कितने डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज है. सो जनरली वी हैव 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. व्हाट आर दोज? दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड quaternary activities. What are primary activities? Primary activities are those where people are engaged in directly extracting the natural resources like farming, mining, forestry. Secondary activities are those activities where people are engaged in manufacturing or industries or construction. Tertiary activities are those activities where where services can be provided like professional services, social services, entertainment services like restaurants, teachers. All this comes under tertiary activity. Now, quaternary activity is another economic activities where people are engaged in research development. Okay, so this is how your world is also divided on the basis of occupation. Now, ये डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अब कैसे लोग इंगेज्ड है. ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो द वर्किंग पॉपुलेशन जो कि होता है 15 to 59 एज ग्रुप, वो लोग डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है. एंड that engagement in different occupational structure in also is a very good indicator of the level of economic development. ठीक है, मतलब there is a very close relationship between the level of economic development of a country and its occupational structure. ठीक है, मतलब the higher the level of economic development, lesser is the proportion of people engaged in primary activities. मतलब जिस कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाई होता है वहाँ पे देखा जाता है कि जो लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंगेज है वो लेस नंबर में पाए जाते हैं. क्योंकि जिस कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, मतलब कि ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तब उस कंट्री में लोग काम करने जाएंगे उसी इंडस्ट्रीज़ एंड ऑल अदर फैसिलिटीज़ में काम करने के लिए जाएंगे. ठीक है, जिस कंट्री का इकोनॉमी अच्छा होगा उस कंट्री में ज़्यादा लोग काम करेंगे इन योर नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ लाइक योर सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरी सेक्टर. ठीक है, इसीलिए हायर द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेसर इज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़. बट ऑन द अदर हैंड, जिस कंट्री में लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेस है वहाँ पे देखा जाता है दैट द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ विल बी हाई लाइक इन एग्रीकल्चर. Okay, so because of the less economic development, okay, that particular country has no further impetus to accommodate people. जहाँ पे economic development less हो रहा है वहाँ पे people ज़्यादा agriculture या primary activities में engage होते हैं. ठीक है ना, अगर अभी हम लोग देखें कि अक्रॉस द वर्ल्ड कैसे लोग प्राइमरी एक्टिविटी से शिफ्ट होके सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी सेक्टर में इंगेज हो रहे हैं, बिकॉज स्लोली एवरी कंट्री इज़ डेवलपिंग. ठीक है, वो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए प्राइमरी एक्टिविटीज़ को छोड़ के नाउ पीपल आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरी, क्वीनरी सेक्टर्स. हाउएवर, still in developing countries the primary activities contribution or the level of or the number of people engaged in primary activities is also very high. But however, most of the industrialized nations के लिए क्या हुआ है कि अब लोग secondary, tertiary activities में engage हो रहे हैं. जैसे कि in most of the industrialized nations क्या हुआ है, more than 40 to 45% people are engaged in tertiary activities. Okay, it's more than your developing countries when you compare to India. Okay, and in the tertiary sector एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है जो बहुत ग्रो कर रहा है, जिसको हम लोग टूरिज्म सेक्टर भी बोलते हैं. ठीक है, सो टूरिज्म सेक्टर इज टुडे ग्रोइंग एज इट कम्स अंडर द टर्शरी ऑक्यूपेशन. सो इन द कमिंग ईयर्स वी may see that the people who are engaged in primary activities may reduce in also in developing countries, and the country may shift its focus towards your secondary, tertiary, quaternary and quinary sectors of development. Okay, so this is how the entire chapter has been covered, where we are questioning every aspect of population composition, whether it may be your sex ratio, age structure, or rural urban literacy and occupational structure. We need to relate and make a comparison between your developed nations and less developing nations. Okay, so all right, I hope you all have understood well from this chapter. Thanks for watching.